وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند سڑک کنارے بیٹھتا چلا گیا، ہر چیز سے بے خبر۔ بس ایک ہی آواز سماعتوں کو لہو لہان کر رہی تھی، ایہان گیس واٹ، آج زمان بھائی کا نکاح تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ جب وہ تھک ہار کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، دل کا درد حد سے سوا تھا۔ 4 سال سے وہ حویلی سے باہر تھا۔ بہت بار سب نے کہا کہ چکر لگا لے، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ بہت مشکل سے دل قابو کیا تھا۔ وہ دوبارہ وہاں جا کر اپنے اور اس کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حویلی میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا، وہ سب کبھی ویڈیو کال کر لیتے اور کبھی زارون، مراد اور ارمان میں سے کوئی اسے تصویریں بھیج دیتا۔ حویلی والوں نے اسے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ان کا فیملی ممبر نہیں ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے جب احساس ہوا ان کے مقام اور اپنی حیثیت کا، وہ بہت حد تک ریزرو ہو گیا تھا۔ خاص کر خواتین کے معاملے میں اس نے حویلی میں بھی نسبتاً الگ تھلگ سا کمرہ منتخب کیا تھا، جس کا ایک دروازہ پچھلے لان میں بھی کھلتا تھا اور وہ زیادہ تر وہی دروازہ استعمال کرتا۔ پھر وہ پڑھائی کے لیے جرمنی آ گیا اور 4 سال سے صرف ٹیلی فونک رابطے میں تھا سب سے۔ آنسو چپ چاپ گالوں کو بھگونے لگے۔ کاش وہ اس وقت کو موڑ کر واپس لا سکتا جب وہ دل کی مکین بنی تھی، یا وہ اپنی اور اس کی حیثیت کے فرق سے ہی آشنا ہوتا۔ لڑکپن کی محبت آج بھی اسی طرح شاد و آباد تھی۔ سالہ سال کی دوری سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھتی ہی گئی۔ اس قدر جاذب نظر تھا وہ کہ لڑکیاں اس کی جانب شہد کی مکھیوں کی طرح کھینچی چلی آتی تھیں۔ اس کی ٹال ہائٹ، باڈی لک، شارپ جا لائن، بلیک بیئرڈ اسے بہت پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی گھور سیاہ آنکھیں جو اب سرخی مائل ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی یونیورسٹی میں جانے کتنی ایشین، جرمن، ٹرکش، عربین اور انگلش لڑکیوں کا کرش تھا، پر وہ نہ خود کسی کا بن پایا اور نہ کسی کو اپنا بنا پایا۔ زمان اٹھ جائیں، ماہمہ نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، حالانکہ وہ جانتی تھی اسے سکون صرف تب تک حاصل ہے جب تک وہ سویا ہوا ہے یا پھر حویلی سے باہر ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جو زمان جیسا ہمسفر ملا تھا۔ آنکھ کھولی تو ماں باپ کے سائے سے محروم تھی، رب کی رضا پر شاکی رہی۔ بی جان اسے بہلاتی کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کا شہزادہ اسے لینے آئے گا، مگر یہاں شہزادے کی جگہ ایک بہروپیے سے واسطہ پڑا۔ وہ جب دل کرتا اسے اور اس کی نسوانیت کو رون ڈالتا۔ اچھائی کا وہ ڈرامہ نکاح کے بولوں کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ سب جان گئے تھے، مگر اب کیا کر سکتے تھے سوائے اس جانور کو لان تان کرنے کے۔ سب نے کتنا سمجھایا تھا ماہمہ کو، مگر جانے کیوں سب جانتے ہوئے بھی اس نے اس کھائی میں چھلانگ لگائی تھی۔ زمان کی وہی روٹین شروع ہو گئی تھی، گھر سے باہر رہنا، شراب پینا، بازاری عورتوں کے پاس جانا، آوارہ گردی کرنا۔ وہ شاہ حویلی کے نام پر ایک بدنما دھبا تھا۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر اس کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ ماہمہ کی من موہنی صورت، اس کا سلیقہ، اس کا دھیما لہجہ کچھ بھی متاثر نہیں کر پایا اسے، جبکہ ماہمہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو چکی تھی۔ سب کی اٹھتی سوالیہ نظروں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمان شاہ کو جان سے مار دے۔ ماہمہ نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ اپنے مقدر کے لکھے پر راضی ہے، اسے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ اگر میرے رب نے چاہا تو میری اس آزمائش کو میرے لیے سہل کر دے گا۔ سب اس چھوٹی سی لڑکی کی اس قدر سمجھداری اور صبر دیکھ زمان کی بدقسمتی پر افسوس ہی کر سکتے تھے۔ کیسا انمول ہیرا رول رہا تھا وہ مٹی میں اپنی بد خصلتی کے باعث، اور اسے احساس تک نہ تھا کہ وہ کیا گنوا رہا ہے۔ وہ سب کو تو چپ کروا چکی تھی، مگر خود اندر سے ہمت ہارتی جا رہی تھی۔ وہ کمرہ اس کے لیے زندان کی مانند تھا۔ زمان نے اس کی روح تک کو لہولہان کر دیا تھا۔ نشے میں وہ بیوی اور طوائف کا فرق یکسر بھول جاتا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے اذیت پہنچاتا۔ بازاری جملے اس کی سماعتوں کو چھلنی کرتے تھے، مگر وہ دھت نشے میں اپنی ضرورت پوری کرتا اور سو جاتا، جبکہ بقیہ تمام رات وہ رو کر گزارتی۔ جانے کتنی راتیں، کتنے دن ہو گئے تھے اسے زمان کی بربریت کا شکار ہوتے۔ اب تو اس نے حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ خیالوں میں الجھی بیڈ کے پاس کھڑی تھی، جبھی وہ درندہ بیدار ہوا۔ سائٹ پر ہٹو، اس نے ماہمہ کو سائٹ پر ہٹنے کو کہا، مگر وہ اپنے دکھوں اور خساروں کو شمار کرتی جانے کہاں کوئی تھی کہ سن نہ سکی۔ تبھی اس نے بے دردی سے اسے پرے دھکا دیا کہ وہ بری طرح فرش پر جا گری۔ ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ اس ظالم نے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے اٹھا کر کھڑا کیا۔ کس کے خیالوں میں گم ہو کہ شوہر کی آواز سنائی نہیں دے رہی تمہیں؟ اپنے رنگین خیالوں کو ذرا دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کر کپڑے نکالو میرے، پھر آرام سے کھوئی رہنا۔
अपने यार के ख्यालों में। वो एक पल में उसके किरदार को तार तार करता बात लेने चला गया, जबकि वो आंसू पोंछती उसके कपड़े निकालने लगी। मीर अभी हवेली आया ही था कि काजिम शाह का बुलावा आ गया। वो शावर लेकर सीधा उनके हुक्म पर उनके कमरे में हाजिर हुआ। आपने बुलाया था? हाँ बैठो, बात करनी है तुमसे। क्या इरादे हैं साहबजादे के? शादी की उम्र निकल जाएगी, तुम्हारे साथ के लड़के बाल बच्चों वाले हो चुके हैं बरखुरदार। काजिम शाह सीधा मुद्दे पर आए थे। आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था? उसने लापरवाही से कहा। मीर, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो बेटा, ऐसे अकेले ज़िंदगी नहीं गुजरती। उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि एक मरहला था मीर शाह को किसी बात के लिए कायल करना भी। लेकिन मेरी तो गुजर रही है और बहुत अच्छी गुजर रही है, आगे भी गुजर जाएगी। आप फिक्रमंद मत हुआ करें मेरे लिए। क्यों इतने कड़वे और इतने शिद्दत पसंद हो गए हो मीर? कभी तो नॉर्मल बिहेव किया करो। ऐसे लगता है जैसे कोई रोबोट हो। कोई तासुर नहीं उभरता तुम्हारे चेहरे पर। कैसे फिक्रमंद ना हूँ मैं? मीर, जवानी तो गुजर जाएगी, मगर जब इंसान बुढ़ापे को पहुँचता है ना, तो सबसे ज़्यादा उसे शरीके हयात की कमी महसूस होती है। हम आज हैं, कल नहीं। कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? अपने बीवी बच्चे होंगे तुम्हारे, तो हम भी सुकून से मर तो सकेंगे। अब आप सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो भी उन्हीं का पोता था। जो भी समझो, मगर हमने कह दिया खुद कोई लड़की देख लो, नहीं तो हम खुद ही पसंद कर लेंगे कोई। बहुत हुए तुम्हारे नखरे। और हाँ, एहान कब वापस आ रहा है? अब पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है उसकी, तो अब क्यों टाल मटोल कर रहा है? वापस बुलाओ उसे भी। कितना सर चढ़ा लिया है हमने तुम सबको। काजिम शाह बरहम हुए। अच्छा, आप रिलैक्स रहें, आ जाएगा एहान भी। और शादी को भी पोस्टपोन कर दें कुछ टाइम के लिए, मैं खुद ही बता दूंगा जब करनी होगी। कमरे में आकर उसने एहान को कॉल मिलाई, मगर फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। उसे तैश आया तो एक मैसेज किया, वार्निंग और कुछ मुअज़्ज़िज़ गालियों के साथ। मीर जानता था कि उसे अरमान बता चुका है ज़मान की शादी के बारे में, इसलिए वो डिस्टर्ब होगा, तो मीर ने भी उसे टाइम दिया था संभलने के लिए। मगर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी वो बहाने बना रहा था, और ये बात मीर को भी परेशान कर रही थी। अब एहान की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना होने पर मीर ने उसे गालियों से नवाजते एक और मैसेज किया, एहान, जर्मनी कोई मार्स पर वाक़या नहीं है कि मैं वहां पहुंच नहीं सकूंगा या तू मुझसे बच जाएगा। अगर तो 2 दिन के अंदर अपना बोरिया बोरिया बिस्तर समेटकर पाकिस्तान ना पहुंचा ना, तो मैं तेरे पास आने पर मजबूर हो जाऊंगा। और अगर मैं आ गया ना, तो तू जानता है, इसलिए सिर्फ 2 दिन, माइंड इट। वो जानता था इसके बाद उसे एहान को दोबारा नहीं कहना पड़ेगा कुछ, इसलिए सुकून से सिगरेट सुलगाता बालकनी में जा खड़ा हुआ। मुराद बेटा, शादी के बारे में क्या प्लान है? अब तो मंगनी को भी 5 साल हो गए हैं। मैं अब और हरगिज़ इंतज़ार नहीं करने वाली। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है बेटा। ट्रेनिंग के बाद खैर से जॉब भी शुरू हो जाएगी। हालांकि दुर्राब शाह की ख्वाहिश थी कि वो उनके साथ बिजनेस देखता, मगर मीर ने अपने साथ साथ उन सबको भी इसी लाइन में लगा लिया था। पहले ज़ारून ने पुलिस लाइन ज्वाइन की, अब मुराद भी उसी के नक्शे कदम पर उसी लाइन में आ गया था। और तो और एहान साहब भी पाकिस्तान आकर CSS करके ऐसा ही कुछ इरादा रखे हुए थे। तो अब क्यों लटका रहे हो मेरी प्यारी मामा जान? ये आपने बैठे बिठाए बहू लाने का शौक कहाँ से चुरा लिया? वो लाड से शाहाना बेगम के गले में बाहें डालकर मुस्कुराया। शौक क्यों नहीं होगा, एक ही तो मेरा बेटा है। बहुत धूमधाम से उसके सर पर सेहरा सजाऊंगी मैं। ओके ओके, आप अपने सारे शौक पूरे कीजिएगा, मगर अभी थोड़ा सब्र करें। आपकी बहू साहिबा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले। अरे, तो क्या वो शादी के बाद पढ़ती नहीं रहेगी? कौन सा किसी ने पाबंदी लगा देनी है इस घर में? घर की ही बात है बेटा, बेशक घर की बात है, मगर शादी के बाद थोड़ा टफ हो जाएगा ना उसके लिए। और वैसे भी मैं कौन सा बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ अभी। अच्छा चलो ठीक है, जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और सही। ये हुई ना मेरी प्यारी मामा जान वाली बात। अब आप अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से चाय पिला दें, बहुत थक गया हूँ, शावर ले लूँ जब तक। नेवी ब्लू सूट पहने वो ऊंचा लंबा शानदार सा मर्द एयरपोर्ट पर खड़ा आने जाने वालों की तवज्जो का मरकज़ बना था, खासकर लड़कियों की। आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो आसपास से बेनियाज अपने स्मार्टफोन पर मसरूफ़ था। कई हसीनाओं की नज़रें उठी तो पलटना भूल गई। एक दो को तो उसने बाकायदा घूरा भी था, जिस पर वो बजाय शर्मिंदा होने के ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए मुस्कुरा कर उसके लिए हाथ हिला गई। उसने कोफ से नज़रों का जाविया मोड़ा, और फिर उसे हसरत से तकती लड़कियों ने
उस मगरूर शहजादे को मुस्कुराते हुए देखा। माय गॉड, हिज स्माइल, डैम किलर। एक सरफिरी बोल्ड सी लड़की ने बुलंद आवाज में कमेंट पास किया, जिस पर उसने ग्लासेस उतार कर उसे देखा। जाने क्या था उसकी नज़रों में कि वो खिसियानी हंसी हंसकर रफू चक्कर हुई। मीर ने पुरजोश होते आगे बढ़कर एहान को गले लगाया। कैसा है मेरा शेर? उसने एहान को सीने में भींचते हुए कहा अपने। ब्रो मैं ठीक हूँ, प्लीज़ सांस तो आने दे। इतनी ज़ोर से कौन गले मिलता है किसी के? मुझे तो अपनी भाभी टूबी पर तरस आ रहा है। एहान ने उसे तो मीर ने उसे मखसूस घूरी से नवाजा। आते ही बकवास हो गई शुरू तुम्हारी। चलो जल्दी से, सब इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से तुम्हारा। बाकी बातें रात को करेंगे बैठकर। ब्रो हम अब हवेली जाएंगे अभी? एहान ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्यों, तुमने कहीं और जाना है? मीर का लहजा यकदम बदला। नहीं, मैं सोच रहा था फार्म हाउस रुक जाता, कल मिल लेता सबसे। एहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीर से कैसे कहे कि वो उन सबके फोर्स करने और ख़ासकर मीर की धमकी आमेज मैसेज पर आ तो गया था, मगर हवेली जाना मतलब उस दुश्मन जान से आमना सामना। अभी वो इस सब की हिम्मत नहीं पाता था अपने अंदर। एहान, मर्द हालात से भागा नहीं करते, उनका मुकाबला करते हैं। मीर ने तंबीही लहजे में सारी बात कर दी, जबकि एहान को लगा एयरपोर्ट की छत उसके सर पर आन गिरी। मतलब मीर को पता है? ओ नो, मैं कैसे भूल गया कि वो मीर शाह है जो हर चीज़ पर बाज किसी नज़र रखता है। कोई चीज़ उससे कब छुपी रहती है। एहान को यकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो क्या सोचता होगा? जिसको उन्होंने घर में रखा वो उनके घर की इज्जत। शिट शिट, एहान ने बेचैनी से माथा मसला। एहान, न दिल किसी के बस में होता है और न तकदीर पर किसी का इख्तियार। वो इशारतन उसे सारी बात समझा कर आगे बढ़ा तो वो भी बोझल कदमों से उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे हवेली करीब आ रही थी, एहान की धड़कनें मद्धम होती जा रही थीं। वो बार बार माथे पर नमूदार होती पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को साफ कर रहा था। मीर उसकी हालत से वाकिफ था, इसलिए खामोशी से ड्राइव करता रहा। जैसे ही गाड़ी हवेली के गेट के सामने रुकी, एहान को लगा कि उसका दिल भी रुक गया है। वो भाग जाना चाहता था, कहीं गायब हो जाना चाहता था यहाँ से। मुर्दा कदमों से वो अंदर दाखिल हुआ। सब वैसा ही था। इर्द गिर्द देखते बचपन के कितने ही मंजर आंखों के सामने घूमने लगे उसके। जब वो सब साथ खेलते थे, जब वो अनजान थे जात पात के फर्क से, मालिक नौकर के रिश्ते से। वो वहीं खड़ा बचपन की हसीन यादों में खोया हुआ था। हाँ हाँ, देखो मेरे कपड़े गंदे कर दिए, जमान ने मिट्टी वाले हाथ लगाकर। वो लॉन में बैठा अपने मैट्रिक के इम्तहान की तैयारी में मसरूफ था जब वो नन्ही सी परी रोते हुए उसके पास आई। रोते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुलाबी गालों के हम रंग हो रही थी। वाइट फ्रॉक में वो लाइट ब्राउन बालों वाली गुड़िया बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही थी। एहान ने उसे उठाकर गोद में बिठाया और आंसू साफ किए। मैं जमान को डांटूंगा कि उसने क्यों मेरी प्यारी सी महिमा को रुलाया। हान, तुम उसे मारना अभी कि उसने क्यों मेरी फेरी फ्रॉक गंदी की। उसने मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखें पटपटाते हुए हुक्म जारी किया। ओके, मैं उसे एक लगाऊंगा भी कान के नीचे। बस अब रोना नहीं मेरी प्रिंसेस ने। ओके हान। वो लाड से उसके गले में बाजू डाले उसके थाई पर उठ खड़ी हुई। दैट्स माई गर्ल। एहान ने उसकी छोटी सी नाक दबाई तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। एहान, कहाँ खो गए हो यार, चलो अंदर। मीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया तो वो गायब दमागी से आगे बढ़ा। सब ने उसका वालेहाना इस्तकबाल किया। बीजान तो उसे उठने ही नहीं दे रही थी अपने पास से। अरे भाई, बच्चे को कमरे में जाने दो, फ्रेश हो जाने दो, लंबे सफ़र से आया है, थोड़ा रेस्ट कर लेने दो। अब कहीं नहीं जाता, जी भर के पास बिठा लेना। काजिम शाह ने राहीला बेगम को तसल्ली दी। जाओ बच्चा, आराम करो अपने कमरे में जाकर। अरमान को जैसे ही पता चला कि एहान आया है, वो सब काम छोड़ छाड़ कर भागा चला आया हवेली। अरमान जानता था वो अपने कमरे में ही होगा, इसलिए लॉन वाले दरवाजे से ही उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो सिगरेट हाथ में दबाए विंडो के पास खड़ा था। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। अरमान आते ही गाना शुरू हो गया। एहान बिना रुख मोड़े मुस्कुराया जब वो पीछे से उसके गले लग गया। एहान, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैंने ये 4.5 साल कैसे गुजारे हैं? तुम कभी नहीं समझ सकोगे एहान कि तुम्हारी जुदाई ने मुझे कितना तड़पाया है। अरमान ने अपने नादीदा आंसू साफ किए। एहान, मुझे तो तेरी इज्जत खतरे में लग रही है आज। ज़ारून ने उसे खबरदार किया। बकवास बंद करो तुम दोनों, शर्म क्या बेच खाई है तुम दोनों ने। एहान ने मुस्कुराहट दबाते उन्हें घूरा था।
शर्म को तो खुद जारून से शर्म आती है। अरमान ने जले दिल के फफूले पोड़े। डूब के मर क्यों नहीं गए तुम दोनों मेरे आने से पहले? एहान ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ा। जहां जमान इंतहाई बदतमीज और सड़ियल था, वहीं अरमान इंतहाई खुश अखलाक और जिंदा दिल था। बस उसका ठरक एहान पर ही निकलता था। वो MBBS के लास्ट ईयर में था, अपने गांव में ही काम करना चाहता था। उसकी ख्वाहिश को देखते हुए काजिम शाह ने तभी हॉस्पिटल बनवाना शुरू कर दिया था, जो अब तकरीबन मुकम्मल होने का था। बस कुछ मशीनरी बाहर से मंगवानी थी। वो तीनों खुश गप्पियों में मसरूफ थे। जब नूरा खाने का पैगाम लाई तो वो सब शराफत से उठ खड़े हुए। वो अरमान की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, जब सामने नज़र उठी तो उठी ही रह गई। ब्लू कलर के येलो कलर के सूट में मलबूस वो डिश हाथ में पकड़े किचन से निकली एहान की तरफ। किचन से निकली वो डिश हाथ में पकड़े किचन से निकली। एहान की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। जब एहान परेशान सा वहीं खड़ा था, पीले रंग के सूट में उसका अपना रंग भी जर्द लगा था उसे। रंगत की वो शादाबियाँ गुलाबियाँ जाने कहाँ जा सोई थी। शादी के 2 माह बाद ही उसकी उसकी इस कदर अबतर हालत ने उसे और बेचैन किया। क्या वो खुश नहीं थी जमान के साथ? जाने कितने सवालों ने सर उठाया। एहान कहाँ गुम हो गए हो? अरमान ने उसे वहीं जमे देख पुकारा तो वो खामोशी से अरमान के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। जमान नशे में झूलता कमरे में दाखिल हुआ। रात के 2 बज रहे थे। वो जो इंतजार करते करते सो गई थी, उसने आगे बढ़कर बाजू से पकड़कर उसे उठाकर खड़ा किया। सबके सामने हम दर्दियां बटोरने को तो नेक और फर्मा बरदार बनी रहती हो, अब किधर है तुम्हारी फर्मा बरदारी? कुछ सिखाया नहीं किसी ने तुम्हें कि शोहर घर आए तो कैसा इस्तकबाल करते हैं उसका? दफा हो जाओ और खाना लाओ मेरे लिए। वो चीखा तो महिमा सहम कर दीवार से जा लगी। अभी तक यहीं खड़ी हो तुम? वो उसकी तरफ बढ़ा तो महिमा जल्दी से बाहर की ओर भागी। सब अपने अपने कमरों में दुब के सो रहे थे और वो आंसू बहाती अपने नाम नेहाद शोहर के लिए खाना गर्म कर रही थी। जब ही कोई किचन में दाखिल हुआ, महिमा ने जल्दी से आंखें साफ की। मुड़कर देखा तो एहान वहीं दरवाजे में इस्तादा था। महिमा को हैरत हुई कि वो इस वक्त जाग रहा था। फिर उसने जल्दी से पूछा, जी कुछ चाहिए था आपको? क्योंकि अगर जमान वहां आ जाता तो एक लम्हा लगाता अपने जहन की गंदगी दिखाने में। कॉफ़ी बनाने आया था। आप कर ले, मैं बना लूँगा, वो कहकर मुड़ा। आप रो रही थी? फिर अचानक रुककर जाने क्यों उसने पूछ ही लिया। कॉफ़ी बनाने आया था। आप कर ले, मैं बाद में कर लूँगा, वो कहकर मुड़ा। आप रो रही थी? फिर अचानक रुककर जाने क्यों उसने पूछ ही लिया। नहीं, वो दरअसल मुझे फ्लू हुआ है ना, शायद इसलिए आपको लगा होगा। वो साफ मुकर गई, क्योंकि वो किसी के भी सामने अपनी तकलीफ़ों को आश्कार नहीं करना चाहती थी। वो मज़ीद कुछ कहे बिना वहाँ से हट गया। जानता था वो झूठ बोल रही है, भला उससे कैसे गलती हो सकती है उन आंखों को पहचानने में। वो खाना गर्म करके लाई तो वो बेड पर जूतों समेत लेटा था। महिमा ने आगे बढ़कर उसके जूते उतारे। खाना खा ले, उसने डरते डरते पूछा, क्योंकि उसके मूड का कुछ पता नहीं कब बिगड़ जाए। नहीं खाना, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर ही पेट भर गया मेरा। इधर आओ। उसने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया तो महिमा खौफ से पीली पड़ी। नहीं, तुम्हारी शक्ल तो बहुत प्यारी है। एक पल में उसका अंदाज बदला और झटके से उसे अपने ऊपर गिराया। महिमा ने शिद्दत से दुआ की कि वो कहीं गायब हो जाए। चलो और नज़दीक से देखते हैं तुम्हारी खूबसूरती को। नहीं प्लीज़। महिमा ने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो फड़फड़ा कर रह गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ झटकोगी? जमान के भारी हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर अपनी छाप छोड़ गया। महिमा को अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। उसने भरपूर मज़ाहमत की, जिस पर उसने मुकम्मल वहशी बनते उसकी गर्दन पर अपनी दांतों को जमा दिया। वो फूट फूट कर रोई। इस कदर तजलील, इतनी जिल्लत उसके मुकद्दर में। जब पता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारे इस तरह जब पता है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारे इस तरह के ड्रामों से, तो क्यों हर बार थकाती हो खुद को? कुछ नया तो नहीं हो रहा आज? जमान ने अपने हर अमल से उसे तकलीफ पहुंचाई और दिल भर गया तो उसे धक्का देकर बेड से नीचे फेंक दिया और खुद सो गया। जबकि महिमा ने वो रात भी गुजरी रातों की तरह सिसकते हुए गुजारी। वक्त पंख लगा कर उड़ गया। एहान ने CSS मुकम्मल कर लिया। टॉप किया था उसने। असिस्टेंट कमिश्नर की सीट संभाल ली।
उसके ओहदे के मुताबिक उसको शानदार सा घर, गाड़ी, गार्ड्स और बहुत सी सहूलियात फराम की गई थी और वो चाहता भी था कि वहाँ शिफ्ट हो जाए। मुश्किल था एक जगह जहाँ आपको इतना प्यार मिला हो, जहाँ आपका सारा वक्त गुजरा हो, उस जगह को छोड़ना, मगर अब उसे ये करना ही था। लेकिन उसके इरादों पर पानी फेरा काजिम शाह ने, ये कहकर के मेरे मरने के बाद जिसको जहाँ जाना हो चला जाए, मगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। सो उनका हुक्म कौन टाल सकता था भला, जबकि शादी के नाम से मीर की तरह वो भी 100 मील दूर भागता था। मुराद शाह एज एन एसपी अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था और अब घर में उसकी शादी की बातें वक्फे वक्फे से की जा रही थी, क्योंकि इरहा के ग्रेजुएशन पेपर्स 3 माह बाद थे और उसके बाद इरहा और मुराद की शादी घर वाले तकरीबन हर बात फाइनल कर चुके थे।